Today, operation on rational numbers. In operation, there are addition, subtraction, multiplication and division. Already we have learned in class 6 operation as addition and subtraction. And now in class 7 we will learn the rule for multiplication and division. But here I am going to introduce you the property of addition of rational numbers first. Then we come to property of multiplication. Here, properties of addition of rational numbers. So first it is closure property. P1, property 1, closure property. It is called closure property. What is closure property? So the addition of two or more rational numbers is a rational number. दो या दो से अधिक रेशनल नंबर का सम एक रेशनल नंबर होता है. फॉर एग्जाम्पल 2/3 plus 5/6. 2/3 is a rational number, 5/6 is a rational number. दोनों का सम. तो फर्स्ट टेक वी एलसीएम, 6 as LCM. 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, plus 6 1 जा 6, 1 into 5, 5. 4 plus 5, 9/6. That is 3/2. The sum of two rational numbers 2/3 and 5/6 is 3/2. 3/2 is a rational number. तो दो rational number का sum एक rational number. It is called closure property. Very important. Now come to next property, property 2, P2. It is called commutative property. Commutative only for two, but for more than two it is called associative. Only for two it is called commutative. More than two it is called associative. The commutative property of addition. The two rational numbers can be added in any order. दो रेशनल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में अगर ऐड करें तो सम वही होगा. There is no difference in their sum. And A and B are two rational numbers, then A plus B is equal to B plus A. ए और बी का सम वही होगा जो बी और ए का सम होगा. ऑर्डर चेंज करने से इसके सम में कोई अंतर नहीं होगा. इट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल 2/3, so here 3/5 plus 4/7. Two rational numbers, their sum is 5 और 7 का एलसीएम 35. 5 7 जा 35, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 5 4 जा 20, 21 plus 20, 41/35. And 3/5 plus 4/7 is equal to 41/35. Now changing the order, 4/7 plus 3/5. ऑर्डर चेंज कर दिए. ऑर्डर चेंज करने पर RHS कितना? तो 7 और 5 का एलसीएम 35. 7 5 जा 35, 5 4 जा 20, प्लस 5 7 जा 35, 7 3 जा 21. 20 plus 21, 41/35. यानी ऑर्डर चेंज कर दिए तब भी सम वही जो कि पहले सम था. यानी A plus B is equal to B plus A. ये प्रूफ हो रहा है. इट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी commutative property, it is only for two rational numbers. More than two rational numbers
It is called associative property. Property 3, associative property. Associative property. Property 3, associative property. 3 or more rational numbers can be added in any order. 3 या 3 से अधिक रैशनल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, सम वही होगा. 3 or more rational numbers can be added in any order. And a plus in bracket b plus c is equal to in bracket a plus b a plus c. ऑर्डर चेंज करते हैं, सम में कोई अंतर नहीं. फॉर एग्जाम्पल 1/2 प्लस 2/3 इन ब्रैकेट प्लस 3/4, 2/3 प्लस 3/4 इन ब्रैकेट. यानी पहले इस दोनों को ऐड करना है, ऑर्डर यही दिखा रहा है. तो पहले इसका कम कर देते हैं, ब्रैकेट का. 3 और 4 एलसीएम 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 8 प्लस 9 17/12. अब इसमें इसको ऐड कर देंगे 1/2 को, तो 1/2 प्लस 17/12, 2 और 12 एलसीएम 12, 2 6 जा 12, 6 into 1 6 प्लस 17, 6 प्लस 17 23/12. यानी इस ऑर्डर में पहले 2/3 और 3/4 को ऐड कर दिए, तब इसका सम, इस तीनों रेशनल नंबर का सम 23/12. अब हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, पहले इस दोनों का सम ले लेते हैं, 1/2 प्लस 2/3. बाद में उसको इससे ऐड करेंगे 3/4 से. तो 1/2 प्लस 2/3, ऑर्डर चेंज कर रहे हैं. 2 और 3 एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 प्लस 3 1 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 प्लस 4 7, 7/6 प्लस 3/4. अब इस दोनों के सम में इसको ऐड कर रहे हैं. 6 और 4 एलसीएम 12, 6 2 जा 12, 2 से 1 जा 14 प्लस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 14 प्लस 9 23/12. इसका भी वैल्यू वही आया 23/12. यानी ऑर्डर पहले इस दोनों को ऐड करने के बाद इसको ऐड किए, और यहाँ पहले इस दोनों को ऐड किए तब उसमें ये ऐड किए, लेकिन रिजल्ट सेम आ रहा है. इसका मतलब 3 और मोर रेशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर. 3 or more rational numbers can be added in any order. It is called associative property. Now comes to property of zero. Property of zero. क्या है property of zero? Property of zero क्या है? तो कहता sum of any rational number and zero is the rational number itself. यानी किसी भी रेशनल नंबर में अगर 0 ऐड कर दें तो सम वो रेशनल नंबर ही होगा. एनी रेशनल नंबर a प्लस 0 इज इक्वल टू a. इट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ 0. प्रॉपर्टी ऑफ 0 यानी 0 प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल 2/3 प्लस 0 इक्वल टू 2/3. 2/3 में जब हम 0 ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट क्या होता है 2/3. जिस रेशनल नंबर में हम 0 ऐड कर देते हैं सम वही रेशनल नंबर होता है. प्रॉपर्टी ऑफ 0. नेक्स्ट प्रॉपर्टी निगेटिव प्रॉपर्टी. निगेटिव प्रॉपर्टी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी. एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी निगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? इफ A by B and C by D are two rational numbers such that A by B plus C by D is equal to 0, then A by B and C by D are called additive inverse of each other. दो रेशनल नंबर A by B और C by D, दो रेशनल नंबर का सम अगर 0 हो जाए तो यह दोनों रेशनल नंबर एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाता है. यानी A by B का एडिटिव इनवर्स तो C by D, और C by D का एडिटिव इनवर्स तो A by B. क्यों? तो इस दोनों का सम 0 है. एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल
2/3 plus minus 2/3 it is equal to 0. 2/3 और minus 2/3 का sum 0. So then additive inverse of 2/3, 2/3 का additive inverse तो minus 2/3. Additive inverse of minus 2/3 इसका additive inverse तो 2/3. ये है प्रॉपर्टीज, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। इसके बारे में आप क्लास 6 में ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर याद है तो आपको रिवीजन हो गया, नहीं याद है तो आपने देख लिया पूरा। अब हम मल्टीप्लिकेशन एंड इट्स प्रॉपर्टी में इन करेंगे, जो कि क्लास 7 के लिए है। ये तो हम एक रिवीजन के तौर पर इतना चीज़ बतलाए हैं आपको, ओनली फॉर द रिवीजन। अब आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो वह प्रॉब्लम आप हमसे पूछ सकते हैं, पूछिए। 4/5, 2/3 और 5/6 इसका एवरेज क्या होगा? ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो तीनों को ऐड कर दिए, 3 से डिवाइड कर दिए। जैसे 3 रेशनल नंबर ए, बी और सी का एवरेज क्या होगा? तो a + b + c डिवाइडेड बाई 3, एवरेज निकल गया। और बोलिए 5/2 को कैसे रिप्रेजेंट करें? तो 5/2 इसको पहले हम इंटीजर और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5/2 तो 5 में 2 से डिवाइड करते हैं। 5/2 को क्या लिखेंगे? 2 1/2, 2 1/2, 2 प्लस 1/2, इंटीजर 2 फ्रैक्शन 1/2, नंबर लाइन बनाते हैं। जो इंटीजर यहाँ है उसको बीच में, इससे बड़ा दाहिनी ओर, इससे छोटा बाईं ओर। इंटीजर 2 यहाँ, उसके बाद प्लस यानी गो टुवार्ड्स राइट। डिनोमिनेटर 2, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 2, तो इस भाग को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। जितना डिनोमिनेटर उतने पार्ट में डिवाइड करेंगे, इक्वल पार्ट में। न्यूमरेटर 1 तो फर्स्ट पार्ट, यहाँ एक वर्टिकल एरो दे दिए। दिस एरो रिप्रेजेंट्स 5/2 ऑन नंबर लाइन। सिमिलरली -3/5 तो -3 में 5 से डिवाइड कर देंगे। -3/5 को क्या लिखेंगे? 0 -3/5, 0 -3/5, इंटीजर 0 और फ्रैक्शन -3/5, 0 बीच में, इससे बड़ा प्लस 1 दाहिनी ओर, 0 से छोटा -1 लेफ्ट साइड, 0 यहाँ, उसके बाद माइनस तो गो टुवार्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की ओर। डिनोमिनेटर 5 तो 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिए। न्यूमरेटर 3 थर्ड पार्ट, 1 2 3, यहाँ एक वर्टिकल एरो, इस it represents -3/5 on number line. Any more? Thank you and have a nice day.